اس کا 26واں باب اور اس کی 16 سے ہم نے 22 آیت کریمہ پڑھا ہے. آمین. تو بڑی خاص بات ہے جو آج ہم سننے والے ہیں، وہ ہے پس دعا کرو کہ تم کو صحبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. آج ہم یہ سیکھیں گے. پس دعا کرو، اپنے پڑوسی سے کہو پس دعا کرو کہ تم کو صحبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. آمین. میرے سیسو کلام مقدس کے اندر یہ لفظ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائے. لکھا ہے کہ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ تم سنو اور سمجھو، اور جب یہ ہوگا تو پھر سمجھ لینا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. آمین. اب یہ بائبل مقدس کے اندر یہ لفظ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہے ہیں کہ اجاڑنے والی جو مکروہ چیز ہے وہ بیسیکل ہے کیا چیز. آج ہم نئی بات سیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس کا ذکر دانییل نے کہا ہے، جس کا ذکر دانییل نے اپنی کتاب کے اندر یہ 600 سال پہلے فرمایا تھا، اور یہ اٹ مینس کہ یہ کیا ہے. اور بائبل مقدس سے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آخری زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ لاسٹ جب اینڈ ہونے والا ہوگا، جب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور بڑی بڑی اذیت ملے گی، آسانیاں ملیں گی، دکھ ملیں گے، پرابلمز ملیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تو یسوع نے کہا پھر سمجھ لینا، پھر سمجھ لینا. بائبل کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے اور لکھا ہے اور جو یہودیوں میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھوں پر ہو وہ اپنے گھر کا سامان لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہے وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو دنوں میں حاملہ ہو اور دودھ پلاتی ہوں. بس دعا کرو کہ تم کو چاروں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. اب یہ مکروہ چیز ہے کیا؟ یہ جس کا ذکر خدا نے یسوع، کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پاس اٹ مینس سب کو آ رہی ہے. آمین. لیکن بائبل کے اندر جو اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے، اس کا دانییل نے 600 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا. اصل میں یہ ایک بادشاہ تھا، اور یہ ایک بادشاہ تھا جو رومی سلطنت میں آیا تھا، اور یہ ہیرودیس کے زمانے کے بعد کا بادشاہ ہے. یہ ہیرودیس کے زمانے کے بعد کا بادشاہ بنا ہے، اور یہ شخص جو تھا اس کا نام تھا ایپیفنس. بولو نا، ایپیفنس. سارے بولو تو نام یاد رہنا چاہیے. ایپیفنس اس کا نام تھا، ایپیفنس. اور یہ ہیرودیس کے بعد کے زمانے کا تھا، لیکن یہ تھا رومی سلطنت کا بادشاہ. لیکن یہ ہیرودیس کے بعد کا تھا، لیکن یہ بت پرست تھا. لیکن ان کی بت پرستی کی جو تعلیم جو تھی، ان کی بت پرستی کی جو عادت جو تھی، ان کے دو دیوتا تھے. ایک تھا باس. باس جوڑتا نہیں ہے، باس وہ، اور باس اور جو اڑتا ہے ایک ان کا یہ دیوتا تھا، اور ایک ان کا سور. سور جسے کہتے ہیں سور، اور یہ سور تھا. اور یہ دو ان کے دیوتا تھے، اور یہ دونوں کی عبادت کرتے تھے. اور ان کے سارا قبیلہ، ان کے ساری شہدین، ان کے سارے لوگ، ان کے ساری رعیا، ان کے ساری حکومت، اس حکومت کے اندر یہ حکم جاری کیا تھا کہ باس کی اور اس کے بعد سور کی جو ہے یہ ہم کی جائے. اور یہ اس کو اپنا دیوتا مانتے تھے. اور سور جو ہے وہ ہمیشہ اجاڑنے والی چیز ہے، وہ جب بھی جہاں سے گزرتا ہے سب کچھ اجاڑتا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح آگے کیا لکھا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ، لیکن اس نے جو کام کیا تھا جو خاص بات ہے، جب اس اجاڑنے والی چیز، مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کے مارفت ہوا ہے، مقدس مقام میں، مقدس یہ الٹر جو ہے، یہ مذبح جو ہے، اور اسی جگہ پہ اسی چیز کو سور کو تو کھڑے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ وقت قریب ہے. اور اسی ایپیفنس نے، اور جو رومی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے باس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، باس کو ہاتھ میں پکڑ کر اور مذبح کے اوپر، الٹر کے اوپر سور کی قربانی کی تھی. باس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور الٹر کے اوپر ہیکل کے ایسا ہے بالکل
सुअर को ज़बा किया था। लेकिन बाइबल के अंदर ये 600 साल पहले दानियल ने इस बात की प्रोफेसी की थी कि जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर समझ लेना के वक्त करीब है। लेकिन यहूदियों के अंदर एक कबीला था, एक कबीले के अंदर जो उनका एक फिरका जो था, और वो फिरका ये था, उसका नाम था यहूदा मुकाबी। यहूदा मुकाबी का जो फिरका था, और ये वो फिरका था और जो मारपीट करने वाला था, ये इसका काम था डंडा सोटा चलाने वाला। कई खर्च होंगे भी ने ना डंडा सोटा चलाने वाले, कई दुआ बंदगी करने वाले। लेकिन ये कबीला था अफीफंस के, जो इसने सारी हरकत की थी इसको मना करने वाला। ये यहूदियों के अंदर एक फिरका था यहूदा मुकाबी का। इसका काम था डंडा सोटा चलाना, इसका काम था लड़ाई झगड़े करना, इसका काम था लोगों को मारपीट करना, इसका काम था बड़े बड़े ऐसा है कि ऐसा लड़ाई झगड़े करने। इन्होंने फिर कहा हम तुसी साइड ते हो जो यहूदा मुकाबी दा क्या हुन असी आप ही एफीफेंस ने जे सीधा कर लांगे। उसका इट्स ओके। वो सारे इन्होंने फिर अपनी टीम को लिया, लेने के बाद अपने सारे हथियार तैयार किए, फिर इन्होंने उनको मारा कूटा और फिर हैकल को अच्छी तरह से साफ किया। हैकल के अंदर जो मशवा पे गंदा खून बहाया गया था ना तार फड़े मुझ पाऊंगे इन पीछे का चौक। और उसके बाद यहूदा मुकाबी का जो थे इन्होंने मारा और उनको मारा कूटने के बाद किया ऐसे किया कि उस हैकल को जो गंदा खून बह चुका था और जो नापाक हो चुकी थी, और उसको ऐसा किया कि धोया, और धोने के बाद फिर इनको अच्छी तरीके से साफ किया। लेकिन ये बात बाइबल के अंदर लिखा जब हो चुकी थी फिर समझ लेना कि मेरा वक्त करीब है। लड़ाई झगड़े फसाद ये सब कुछ आप सब जगह हो रहा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो दूसरी बात हम पे सीखेंगे वो है कि इसके लिहाज से लिखा और याद करना और जरूर ये बात समझना कि तुमको सब्बत के दिन भागना ना पड़े, सब्बत के दिन भागना ना पड़े। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खास बात जो खुदा यीशु मसीह के जो दूसरी बात हम सीखने वाले वो है गमराह ना हो जाना। गमराह बाइबल के अंदर लिखा गमराह ना हो जाना। मैं तुम्हें ऐसा है, मैं तुम्हें एक ऐसा है बातें याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। और मेरे शागिर्दों ने उसको कलबद्ध किया, लेकिन जब ये कौमों तक, कबीलों तक, उम्मतों तक, मज़ाहिबों तक, घोड़ों तक, लंगड़ों तक, उम्मतों पर सब लोगों तक ये पहुंच गए, पहले जान जाएंगे कि खुदा यीशु मसीह का जब मेरी आमद करीब होगी, जब मेरे आने का वक्त होगा, फिर याद कर लेना कि तुम गमराह ना हो जाना। ये बात पे जो है दूसरी हम सीख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम गमराह ना हो जाना। जब कौम पर सल्तनत पर ऐसे चढ़ाई करे तो तुम गमराह ना हो जाना। और फिर बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत आज लिखिया तुम्हारे ईमान का जहाज गर्क ना हो जाए। एक कई बार अपने जा तेरा बेड़ा ही ऊंची बोलो, बोलो हरी भाई बोलो नहीं पूरा लफ्ज बोलो, कैमरे तक तेरी आवाज है। हाँ ये बात बाइबल के जाओ तेरा, इसका मतलब यह है जब तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है कहता तेरी ईमान का जहाज गर्क ना हो जाए, तू ऐसा है गमराह ना हो जाए। और बाइबल के अंदर जब हम इसको पढ़ते पहला तीमुथियुस उसकी 19 में लिखा है, आगे वो उस बात को रिटर्न करता है और रिटर्न करता तो उसको लिखता है। जरा आइए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि ये था क्या, ये क्या तीमुथियुस कह रहा है। और यीशु मसीह ने भी कहा है और बाइबल मुकद्दस के अंदर पे लिखा है कि जब तीमुथियुस को मुकद्दस पौलुस रसूल ये खत लिख रहा है, उसको ये खुदा यीशु मसीह की बातें याद दहानी करवा रहा है, उसको ये बता रहा है कि याद करना कि तेरे ईमान का जो है वो बेड़ा यानी जहाज तबाह बोलो सारे ना हो जाए। आइए तीमुथियुस का खत देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे है दूसरा पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब 19 आयत में लिखा है और जिसको दूर करने के सब से बहुत लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया है। जिसको दूर करने से ईमान, बाइबल कहती है ईमान का जहाज। कुरान यीशु मसीह ने यहाँ ऐसा क्या कोट के यीशु मसीह ने कहा है कि बाइबल ये बताती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि तुम्हारा ईमान जाता न रहे, तुम गमराह ना हो जाओ तरह तरह की बातों सुनकर। अच्छा यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदे किए, हाथ उठाओ। यीशु मसीह ने लंगड़े बोलो चलाए,
फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़ात किए तो चंदरी का दम नहीं ढा सकता। चंदरी होंदी है किसी दी वो नहीं हटा सकता। जिसने ये बड़े बड़े काम किए उस वक्त हम किसको ढूंढते हैं? हम किसी और को ढूंढते हैं जिहड़ा चंदरी दा ते ठुमे दा। साडे एक मुंडे दे इंज के ठुआ इंज लड़ गया तो वो होर चक्करां च पिया होए है, या बासवा हमारे के ऐसा चंदरी हो जाए नहीं 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 दुआ नहीं करनी, वो बंदा दम करता था। अच्छा जो मुर्दी जिंदा करता है वो ये काम नहीं कर सकता। बोलो तो सही ना, ठीक ये काम नहीं वो कर सकता। क्या बाइबल के अंदर लिखा तुम्हारे ईमान का जहाज कर्क ना हो जाए, तुम्हारे ईमान का जहाज तबाह ना हो जाए। बाइबल के अंदर लिखा तुम घबराओ ना हो जाना। क्या लिखा है मत्ती की इंजील उसके 26:5 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा खबरदार, यीशु ने जवाब में उनसे कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आए थे, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तो फिर ये चमन वाले जहाज, हमारे ईमान का जहाज तबाह होने वाला है, कर्क होने वाला है, फिनिश होने वाला। हम यीशु की बातों को अपनी लाइफ के अंदर लें, आमीन। और फिर कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब यीशु से ये कहा था तो घबराना होना, यानी इसकी लड़ाई भी होगी, फसाद भी होगा, ऐसे कौन कौन पर ऐसे हसरत करेगी और ऐसे लड़ाइयों की अफवाह सुनेंगे। अब कहीं लोग कहेंगे कि ये है। अफ्रीका के अंदर एक शख्स उससे कहा कि मैं क्राइस्ट हूँ, लेकिन बट वो नहीं था। लेकिन यीशु मसीह की पेशगोइयां भी तो पूरी होनी है ना, लोगों ने दावे भी तो करने हैं ना। इसके बाद एक ऐसा था कि एक शख्स जो था और वो आया था, उसने कहा था कि आई एम होली स्पिरिट, मैं रूहुल कुद्स हूं, बट वो नहीं था। लेकिन उससे ये कहा था, अपने शिगिर्दों को ये कहा था, और मानी उसका नाम था, उससे कहा था कि जनाब मैं जो हूं और मैं होली स्पिरिट हूं, और जिसका खुदा ने यीशु मसीह ने जिक्र किया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा जब ऐसा है तुम घबराओ ना हो जाना, तुम उन तालीम को लेना, उन ख्यालों को लेना, उन इरादों को लेना, उन बातों को अपनी हसूरी मेरी हसूरी में लेकर अपने दिल के अंदर रख लेना। जब तुम ये सब सुन लेना फिर समझ लेना वक्त करीब है। तो वक्त तो नांडे ही लगा हुआ है, अपनी तैयारी करें। जो अगला जो टॉपिक है आइए तीमुथियुस 4:1 में देखेंगे। तीमुथियुस 4:1, पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी ऐसा पहली बात देखेंगे कि क्या यहाँ खुदा का बंदा कह रहा है। जरा तवज्जो के साथ पहला तीमुथियुस उसका 4:1, लेकिन रूह साफ फरमाता है। रूह जिधर रूह साफ फरमाता तो फिर इंजे चंदरी का दम भी कराने वाले यीशु को आया। ये बात छोटी सी है, लेकिन अमान का जहाज तबाह होने वाला है। क्या लिखा है? दांत का दम वो यीशु नहीं कर सकता, जिससे दांत दिए वो दर्द को नहीं डाल सकता। तो फिर ईमान का जहाज थाम लो, थाम लो, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बस गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जह होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएगी। हमने काम तो छोटा सा किया, लेकिन ईमान का बेड़ा, ईमान का जहाज सारा तबाह हो गया। उसके 4 हिस्से होते हैं जहाज के जो उसको चलाते। लेकिन बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम सिखाता, जब आपने ये काम नहीं किया तो समझ ले आपके ईमान का बेड़ा जहाज तबाह हो चुका है। लेकिन आप उसको तबाह नहीं होने देना, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम घबरा ना हो जाना, क्योंकि तुम ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या करेगा? वो नजात पाएगा, वो इनाम पाएगा। और फिर उसके बाद ऐसा है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है तैयार रहना। क्या करना? तैयार रहना। खुदा में यीशु मसीह कहते हैं जनाब तुम तैयार रहना। और पहले मत्ती की इंजील में 25वें बाब में एक ऐसा 10 क्रम मिलता है, 10 गवारियां हैं बाइबल के अंदर लिखा, लेकिन वो तैयार रहती है यीशु मसीह के लिए 5। और वो हर वक्त हर लम्हा में हर वक्त दो में है, हर वक्त स्ट्रगल में है, हर वक्त आका के इंतजार में है, हर वक्त वो कापी बुलाए। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि बाइबल हमें ये बता, इसी उसके 5 में लिखा है कि उसके ऐसा 14 और ऐसा है कि उसकी 17 तक जब हम इसको पढ़ते, बड़ा अजीम वाक्य है। इफ्सियों की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत है। इफ्सियों को निकाल सकता है तो पढ़े, ताकि हम बड़ी इसी तरीके से हम देखें। इफ्सियों 5
इससे 5 उस कैसा है 14 सब पढ़ेंगे। इसलिए वो फरमाता है, इसलिए वो फरमाता है, बाइबल में लिखा है भाई, इसलिए वो फरमाता है आज सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले, बाइबल कहती है सोना नहीं है संडे वाले दिन। संडे वाले दिन तुमने प्रेयर के लिए आना है, तुमने दुआ के लिए आना है, तुमने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाना है, तुमने तैयार रहना है। इस चीज की कलीसिया को लिखते हैं आज सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर। आगे क्या लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलती हो, ना दानों की तरह नहीं बल्कि दानवों की माना चलो, और वक्त को गनीमत चलो क्योंकि दिन तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब दिन बुरे हो जाएं, जब तुम ये मकरूह चीज को हैकल में खड़े हुए देख लो, फिर समझ लेना कि वक्त करीब है। फिर आगे क्या लिखा खुदा के कलाम के अंदर, फिर लिखा है बाइबल बताती है लेकिन याद करके करना कि तुम्हें सब्बत के दिन भागना, यानी सब्बत में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसके अंदर कोई रेवलेशन है। लेकिन लिखा उस वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसी सब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो क्या है। खुदा की मर्जी को समझना है कि क्या है, खुदा की हसूरी को समझना है, मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, मेरे खानदान के लिए क्या है, मेरी बीवी के लिए क्या है, मेरे शौहर के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है। खुदा की मर्जी को समझो क्या है, खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। हमने खुदा की मर्जी को समझा ही नहीं है कभी, हम अपनी मन मानिए करते क्या है हमारे बाप ने क्या है। जैसे हमारी साड़ी समानते तो जमीन ते भी साड़ी है जाके साड़ी मर्जी भी समानते पूरी होते थे, नहीं हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी। मकदस पौलुस कहता चला तो खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। आगे क्या लिखा है, सब तवज्जो के साथ इस बात को सुनेंगे, इसी स्वरूप से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो क्या। यीशु मसीह का तुम इस रेवलेशन को समझ लेना, तुम इस मकासमा को समझ लेना, तुम इन बातों को समझ लेना, और फिर क्या है इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। और मत्ती उसके ऐसे है कि 25वें बात के अंदर लिखा है, और जब दूल्हा आने वाला था तो बाइबल में लिखा जो 5 अक्लमंद थी वो तैयारी में थी। वो कहाँ थी, वो तैयारी में स्ट्रगल कर रही थी, वो इंतजार में थी दूल्हा कब आए, हम उसके इस गवाल के लिए निकले। वो तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन वो इट मीन्स कि वो रेडी थी, वो सिर्फ वेटिंग कर रही थी दूल्हे का, वो सिर्फ वेटिंग में थी कि कब आए। और बाइबल वक्त इसके अंदर लिखा है अच्छा वो दूल्हा आ चुका था, लेकिन बाइबल के अंदर जब आप फिर बात रिपीट करने लगा वो ये था कि वो तैयार थी। वो क्या थी, वो तैयार थी। बाइबल के अंदर लिखा बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल अपनी ऐसे पोजीशन में बैठी थी। कई दफा असी किते जाइए तो साडे बहुत सारे काम होते हैं, असी तैयार होना आंदा, असी बहुत कुछ, मैं अगली गल समझ गई तुसी मैं की आखन दिया, मैं कोट वर्ड से दस दिया, लेकिन हम बहुत तैयारी करते। क्या लिखा है, जो तैयार थी अब उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई। आमीन। जो तैयार थी अब हर वक्त तैयार है खुदा के लिए, क्योंकि कभी कॉल हो सकती है, कभी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और वो बादलों पर बैठ कर आएगा और सारी एक आंख उससे देखेगी और हर एक काम के बाद बदला दिया जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है खुदा की मर्जी को समझो क्या है, खुदा के रेवलेशन को समझो क्या है, खुदा की कुदरत को समझो क्या है, खुदा की बातों को समझो क्या है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा है कि याद करना कि तुम्हें सब्बत के दिन भागना ना पड़े। दुआ करो, मत्ती रसूल के इंजील के अंदर, इसी इंजील के अंदर लिखा हुआ है, तवज्जो के अंदर लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में जागो और सुते रहो और दुआ ना करो। सुते रहो और दुआ जे के दे मने दे पापा उठ खलो, अच्छा उठ खलो ना मने दे पापा उठ खलो, हाँ उठ खलो। लेकिन बाइबल क्या कहती, खुदा का कलाम सिखाता, बाइबल के अंदर लिखा है जागते रहो। क्या करो, इसका मतलब नहीं कि तुसी सोओगे नहीं तो तुसी तां भी जे बीमार पड़ जाओ। अगर आप सोते नहीं ना आपकी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। लेकिन
इसका मीनिंग्स कुछ और दो हैं, लेकिन मैं एक और आपको बता। इसका मतलब यह है हमें सुस्त नहीं होना खुदा के कलाम में, हमने खुदा की बातचीत में सुस्त नहीं होना, हमने खुदा की हसूरी में सुस्त नहीं होना, हमने अपनी जिंदगी को, अपने एक हिस्से को, अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे परिवार को खुदा की सूरी में लाना। ठीक है, लिखा है अच्छा वो 5 अक्लमंद थी, 5 बेवकूफ थी, लेकिन बाइबल कहती तुम तैयार रहना है, लेकिन वो तैयार रहती है खुदा के कलाम के अंदर का। उसके बाद मछली थी, और मछलियों के अंदर क्या था? तेल था। मछली भी थी और तेल भी था। खुदा के कलाम के अंदर लिखा मछली भी थी और तेल भी। तो क्या लिखा है? जब तेल, दूसरों के पास मछली थी बट तेल नहीं था। मछली सबके पास है, लेकिन तेल बहुत कम लोगों के पास है। रूहुल कुद्स की बात हो रही, होली स्पिरिट की बात हो रही, पाक रूह की बात हो रही, होली गोस्ट की बात हो रही, होली स्पिरिट की बात हो रही। होली गोस्ट कहते हैं वो रूह और जो काम करे और नजर ना आए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, लेकिन वो तैयार थी, जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। अगर फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगे खुदावन हमारी दरवाजा खोल दे। उससे जवाब का मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम